بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منزل .com سے میں ہوں صبیحہ صبا، اور میرے ساتھ ایک بہت کراچی کی بہت اچھی شاعرہ ہمارے میرے ساتھ موجود ہیں، شاہدہ عروج صاحبہ۔ ان کی 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ایک نثر کی کتاب ہے ان کی، یہ بکھرے موتی ذات کے، بکھرے موتی ذات کے، یہ 2009 میں شائع ہوئی، اور اس سال 2018 میں ان کی جھیل میں اترا چاند، اور اس کی بہت بے پناہ پذیرائی ہوئی۔ ادیبوں، شاعروں نے، نقادوں نے اس میں مضامین پڑھے، اور ان کے بارے میں ایک پورا رسالہ یہ دنیا ادب کا ان کی تقریب پہ مشتمل یہ رسالہ شائع ہوا، تو بہت پذیرائی ہوئی ان کی۔ تو ان کے 2 شعر میں پڑھتی ہوں۔ ساری دنیا ہے آس پاس میرے، ان میں تم سب سے خاص رہتے ہو، جا کے کتنے ہی دور بس جاؤ، تم میرے دل کے پاس رہتے ہو۔ شاہدہ عروج سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کیسا رہا آپ کو؟ بہت مبارک ہو آپ کی یہ نئی کتاب، اور اس سے کافی پذیرائی ہوئی، کیسا لگتا ہے؟ بس اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، اور ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور آپ جیسے سینئرس کا تعاون بھی شامل ہے میرے اس مقام تک، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا، تو اب ایسا ہے کہ آپ نعت پڑھنا چاہ رہی تھی، تو پہلے ہم نعت نعت سنتے ہیں آپ سے، پھر باقی باتیں کریں گے۔ اجازت؟ ارشاد۔ حقیقت ہے شاہ دو عالم کا جب تک غریبوں کی جانب اشارہ نہ ہوگا، گلے باغ حسرت شگفتہ نہ ہوں گے، بلندی پہ ان کا ستارہ نہ ہوگا، زمانے کے ٹھکرائے در پہ ہے آئے، مصیبت زدہ ہے کہاں اور جائیں، علاوہ تیرے در کے اے کملی والے، کہیں بھی ہمارا گزارا نہ ہوگا، او طوفان غم میں فنا ہونے والے، سفینے کے انجام پہ رونے والے، برا کر نہ مانے تو سچ بات کہہ دوں، محمد کو تو نے پکارا نہ ہوگا۔ چلیے، بہت اچھا۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ آپ کی جو نثر ہے، پہلے نثر آپ نے لکھی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ افسانے ہیں کیا؟ اس میں افسانے بھی ہیں اور ناول بھی ہے۔ اچھا جی، اچھا، 3 افسانے ہیں 3 افسانے اور 1 ناول۔ اچھا، یہ آپ کی پرانی تصویر۔ جی، اچھا، تو اس کی بہت پذیرائی ہوئی ہے، اس کی جی ہاں جی، اور یہ دراصل جو آپ کہاں چھپتی تھی زیادہ؟ ڈائجسٹ میں، کافی ڈائجسٹ میں، شعا میں، خواتین میں، پاکیزہ میں۔ اچھا جی اچھا، یہ وہاں سے؟ جی ہاں، یہ وہاں سے نہیں، اس میں تو الگ ہی ہے، یہ الگ کہانیاں ہیں، یہ الگ ہے، وہ الگ چھپی ہے، یہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں چھپائی؟ نہیں، وہ نہیں چھپی اس کے اندر، ابھی نہیں چھپائی؟ نہیں، وہ تو چھپ چکی نا ڈائجسٹ میں۔ تو ڈائجسٹ کی اپنی کتاب بھی تو جمع کریں نا۔ ہاں، وہ نہیں کیا، وہ ابھی بے سمجھ میں بکھرا ہوا ہے ابھی۔ جب ایک قلم کار ہے، اس کو اپنی چیزیں جمع کرنی چاہیے نا۔ دراصل میری کہانیوں میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک پیغام ہوتا ہے، اور میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ صرف ہم یہ صفحے ہی کالے نہ کریں، ایک کوئی جو پڑھنے والے قاری کے لیے
ایک پیغام ہونا چاہیے. تو اس میں پیغام ضرور ہوتا ہے، میری ہر کہانی میں پیغام ہوتا ہے. ہاں ظاہر ہے کہ جب لکھتا ہے تو کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا. جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ چاہے اسے خوبصورتی سے اس میں جذب کر دیتے ہیں، مقصد تو ہوتا ہی ہے لکھنے کا. نثر کے لیے میں قلم جب بھی میرا اٹھتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اٹھاتی ہوں، اٹھتا ہے کہ جب میں کچھ دیکھتی ہوں کہیں آس پاس یا کہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی زیادتی یا کوئی حادثہ یا کوئی اس طرح کی چیزیں، تو میں تو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے نا. یعنی آپ دنیا کی چھوٹی ہو گئی ہے، واقعات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر یہ سارے طاری ہو جائیں خود پہ تو انسان خود کا کھانے کو دل نہیں کرتا. یعنی اتنی پریشانی یہ بچپن سے ہی ہے میرے ساتھ نا. اچھا بچپن سے ہی میں نثر نگاری میں اور چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھا کرتی. ایک شعر ہے، عزت میرے خدا نے عطا کی ہے وہ مجھے، جتنا بھی کروں شکر ادا ہو نہیں سکتا. تو یہ اس میں سے آپ کوئی غزلیں سنائیں؟ کیا ہے نظمیں غزلیں سب کچھ سب ہے جی. اچھا کیا کیا اس میں نظمیں اس میں جی حمدیہ کلام بھی ہے اور نعت بھی ہے اور نظمیں بھی ہیں اور غزلیات زیادہ ہے، ہائیکو بھی ہے. ہائیکو مجھے بہت پسند ہے. ہاں چھوٹی چھوٹی جی. اچھا صاحب بیان کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی لفظوں میں، چھوٹی چھوٹی بہت اچھی. تو یہ آپ کو کیسے شوق انکشاف کا بہت کب آپ شاعرہ بنی، کب منتشپ ہوا آپ کے اپنی ذات کی، کب میں شاعرہ ہوں؟ دراصل میرا ننیحال کا تعلق تو آگرہ سے ہے. اچھا. اور جس کو اکبر آباد بھی کہتے ہیں. اچھا. اور میرے ددیال کا تعلق پشاور سے ہے، چارسدہ سے ہے. اس میں ہے میرا تعلق. پہلی کتاب ہے ذرا تفصیل سے تعلق ہے، اس میں ذرا مختصر تعلق ہے کیونکہ بس ایک ہی دفعہ کا تعلق کافی ہوتا ہے. ہاں تو اس لیے ہاں وہاں پہ انڈیا میں میرے دادا بھی کالم نگار تھے. اچھا جی. تو آپ میں آئے؟ ہاں میرے اندر آیا، تقریباً سب میں ہی آئے. میرے بھائی سنگر ہیں امریکہ میں جی، شاہد سلیم خان بہت مشہور ہیں جی. اچھا وہ سنگنگ میں جی. ہاں تو آپ ادھر آ گئی؟ میں ادھر آ گئی. ہاں پاپا میرے دونوں میں تھے. پاپا سنگنگ کرتے تھے مگر پاپا کو ظاہر تو اثرات تو بہت دکھاتے ہیں. ہاں اسی لیے آپ کو پاپا کو، لیکن آپ نے اس میں ریاض نہیں کیا لگتا زیادہ سنگنگ میں؟ نہیں میں جیسے نا یہ تو عقیدت میں آپ نے نام. جی ہاں عقیدت میں. ہاں اچھا اچھا. تو میں نے کہا اتنی شوق ہے. نہیں میرے بھائی تو بہت ماشاءاللہ بہت مشہور اور بہت معروف اور سنگر ہیں. یہ آپ کا لکھا ہے گلنار آفرین نے لکھا ہے آپ کے بارے میں، اقبال سہوانی نے، عابد علی بیگ. اچھا اب ہم آپ سے کچھ شاعری سنیں گے. تازہ کلام. ہاں تازہ کلام سے شروع کروں گی. ہاں بالکل نہیں جانے بالکل نہیں. اس کے بعد کتاب جیری میں اترا چاند کے بعد. جی ہاں. دشت جاں میں خدا کرے کوئی، دشت جاں میں خدا کرے کوئی، دشت جاں میں خدا کرے کوئی، میرے حق میں دعا کرے کوئی. عشق میرا یہاں تک آ پہنچا، عشق میرا یہاں تک آ پہنچا، میں مروں اور جیا کرے کوئی. داستان شب علم اپنی، داستان شب علم اپنی، میں سناؤں سنا کرے کوئی، میں سناؤں سنا کرے کوئی. تیری باتیں کیا کرے مجھ سے، تیری باتیں کیا کرے مجھ سے، جب بھی مجھ سے ملا کرے کوئی. واہ واہ واہ. پھر سنائیں. تیری باتیں کیا کرے مجھ سے، تیری باتیں کیا کرے جب بھی مجھ سے ملا کرے، جب بھی مجھ سے ملا کرے کوئی. واہ. میرے دل سے لگا کے کان اپنی دھڑکن سنا کرے کوئی. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. اپنے دستے وفا سے چھو کے مجھے، اپنے دستے وفا سے چھو کے مجھے، پھول خوشبو صبا کرے کوئی. واہ واہ واہ. میرا نام بھی آ گیا. جی ہاں یہ شعر آپ کی نظر ہی کرتی ہوں. اپنے دستے وفا سے چھو کے مجھے، پھول خوشبو صبا کرے کوئی. میری چاہت کے رنگ کہتے ہیں، میری چاہت کے رنگ کہتے ہیں، میری چاہت کے رنگ کہتے ہیں، مجھ کو رنگ
हिना करे कोई, मुझको रंगे हिना मुझको करे, रंगे हिना करे मेरी कोई, चाहत के रंग कहते हैं, मुझको रंगे हिना करे कोई। मुझको रंगे हिना करे कोई। अच्छा, और बताए अब बहन भाइयों में बड़ी है? बहन मेरे से बड़े भाई हैं जिनका भी जिक्र हो रहा था, जो सिंगर हैं, शाहिद सलीम खान उनका नाम है। अच्छा, तो वो मेरे मुझसे बड़े हैं, फिर दूसरे नंबर पे मेरा नंबर है। अच्छा, और बाकी बाकी बहनें मेरी 3 अमेरिका में हैं, और एक हाँ। शाहिद सलीम के भाई हैं, वो भी अमेरिका में हैं, मेरे पापा भी अमेरिका में हैं, सफीर कयाम है उनका तो वहाँ आप पर। इधर रहेंगी? मैं यहाँ पर हूँ अपने हमारी हस्बैंड तरह। अपने हस्बैंड की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, हाँ। बच्चों की वजह से। हाँ। वो तो है, होता है जहाँ पे नहीं होता। हम भी बाहर रहे यूएई में ज्यादा, लेकिन सब इनके बहन भाई जो है मेरे, वो सब अमेरिका में है, तो अकेले हैं ये यहाँ पे। अच्छा। और बाकी सब बहनें भाई माँ बाप तो मैं भी तकरीबन यहाँ पर, मैं हूँ, एक मेरे भाई है एक और हैं जो मुझसे छोटे हैं, और एक मेरी बहन है, बस हम 3 बहन भाई यहाँ पर हैं। अच्छा, अच्छा। मेरी बेटी भी कनाडा में है, शादी होगी कनाडा की। तो अब अगली आप वो गज़ल भी लिख रही हैं, या मैं गज़ल की तरफ ध्यान ज्यादा, शायरी की तरफ ज्यादा हो गया? दरअसल पता नहीं क्यों मेरा मूड होता है, कभी गजल को होता है, कभी गजल में कहती हूँ, शायरी का होता है। जी हाँ, कभी कभी होता है कि बस वो अफसाना लिखना है, तो पता नहीं मुझे अंदर से जैसे एक आमद होती है। लोगों को तो मैंने ये सुना है कि वो गजलों की आमद होती है या नज्म की होती है, मगर मुझे अफसानों की भी होती है। हाँ, अफसानों की होती है। जैसे कभी मैं आधी रात को कहानी का बन जाता है, फिर उसके बाद उनको आप लिखना शुरू करें, वो फैलाओ, और वो तो सब बाद में ही आता है ना। ये कहानी अपन दिल में तैयार हो जाती है उसका खाका। हाँ, तो उसके बाद फिर आप लिखना शुरू करते हैं। अफसाना भी या कोई नॉवल भी है तो वो मेरे ध्यान में पूरा प्लॉट होता है, आ जाता है। जैसे कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं आधी रात को जाग गई एकदम से, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ मतलब जैसे कहानी है पूरी मेरे ध्यान में। अच्छा, अच्छा। तो बार बार तो यूं हुआ कि मैंने सोचा कि जरा सुस्ती में कि चले सुबह निकलेंगे, उठ के अभी नींद पूरी करना है, आधी रात हो रही है, लाइट जलाऊंगी तो लोग भी डिस्टर्ब होंगे, हस्बैंड भी बच्चे। तो सुबह जब मैं उठी लिखने बैठी तो मनोमा ब्लैंक। तो मैं सोच ही रही कि क्या था, क्या आया था। फिर उसके बाद ख्वाब की तरह आई ना कहानी, हम निकल गई तो निकल गई। ख्वाब भूल भी जाते हैं। कोई होते रोशन ख्वाब जो याद रहते हैं, बड़ी वाज़ेह वजाहत के साथ वो याद रहते हैं। मगर अब मैं ऐसा नहीं करती, अब मैं आधी रात को भी अगर मेरी आँख खुलती है ना, कहानी कहानी फिर मैं चुपके से उठती हूँ, फिर दूसरे कमरे में अपना जाती हूँ, जगह तो माशाल्लाह बहुत है, मेरा लिखने पढ़ने का अपना एक स्टडी रूम अपना अलग है मेरा, तो फिर मैं वहाँ चली जाती हूँ, फिर वहाँ पे मैं लिख लेती हूँ चीजें ना। अच्छा है कि आप फिर अब कहानी नहीं, अब मेरी कहानी कुछ लिखी होती है, कहानी नींद जाए तो जाए। हाँ, नींद जाए तो जाए, बाकी नींद से क्या बाद में भी पूरी हो जाएगी वो फिर, क्योंकि लिखती नहीं ना, फिर मुझे पता नहीं क्यों डिप्रेशन हो जाता है अगर मैं लिखूं नहीं तो। जाया हो गई कहानी। हाँ, जाया हो गई, और पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो गया। अच्छा, हाँ, ऐसा ही होता है, शुरू से ऐसा है, बचपन से ऐसा ही है। अच्छा जी, कभी जब हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, दादा दादी फूफो चचा चाची और सब लोग थे, और मम्मी और बहन भाई भी। पापा तो शुरू से बाहर है, पहले बहरीन में थे, वो फिर सऊदी अरब में रहे वो। तो पापा तो तकरीबन पाकिस्तान छोड़े हुए उनके 50 साल तो हो गए साथ में, 55 साल। जी, पापा को वैसे भी पाकिस्तान पसंद नहीं है। अच्छा, तो हम यहाँ की आबोहवा भी पसंद नहीं है, यहाँ के लोग भी कहते हैं कि वो तो कहते हैं सारी चीजें जारी हैं। जी लोग हैं। नहीं, अब जैसे कुछ लोग जो हैं, अब सगीर साहब जो ये तो इनके तो बहुत मौके बाहर रहने के, अमेरिका जाने के, सब बच्चे उधर हैं, तो लेकिन ये नहीं, ये कहते इन्हें पाकिस्तान ही पसंद है, पाकिस्तान का माहौल पसंद है, पाकिस्तान के लोग पसंद है, हर चीज। मुझे भी, हम भी इसीलिए यहाँ पे हम आ गए। और ठीक है, वो बात चीजें असल में कुछ ऐसे तजर्बे हो जाते हैं कि इंसान बददिल सा हो जाता है। और दूसरा ये कि वहाँ पे एक माहौल जरा साफ सुथरा, ये खूबसूरती है कि सफाई ज्यादा है। और ये, और यहाँ पे फिर आए तो फिर उससे शुरू में घबराहट होती है, अगर वो ज्यादा दिन रहते तो फिर शायद ठीक, फिर उनको आदी हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ जो इंसान है हमारे इर्द गिर्द, वो उस तरह का नहीं, अपनी मर्जी होती है। मेरे एक भाई है वहाँ पे बहरीन में, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, वो अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यहाँ आए,
हाँ पाकिस्तान की मोहब्बत में, हम सबकी मोहब्बत में यहाँ आए हो। अलग अलग जी, होता है ना मिजाज की, जी, कोई क्या चीज है। हाँ। अब अपनों को तो जाहिर है ये इस मुल्क जैसा वहाँ वो कोई, पुलिस में थे वो, अच्छा बहुत अच्छी जॉब थी। कोई यहाँ पे हाँ। ये इस मुल्क जैसा तो मुझे लगता है कोई है ही नहीं, इतना अपनापन है इसमें। मुझे जाती तौर पे तो पाकिस्तानी पसंद है, हाँ, क्योंकि मैं कनाडा गई तो मेरा वापसी के दिन गिन रही थी आने के। इतने दिन रह गए, इतने दिन रह लेकिन गए। जब तक हमारा वहाँ पे अपना घर था वो और बात है, लेकिन हाँ। जब हम मिलने के लिए जाते हैं ना, फिर ज्यादा दिन नहीं, फिर थोड़े दिनों में आना चाहिए। तो ज्यादा लंबा, हम एक दफा 6 महीने ठहर गए थे, तो बड़ी मुश्किल से टाइम गुजरा था वहाँ पे। अपनी चीजें याद आती हैं हाँ, यहाँ पर। अपना घर कराची एयरपोर्ट पे आती है, फिर सुकून मिल गया मुझे अपने जाती तौर पे, मेरी ये कैफियत होती है। चले अब हम सुनते हैं आपसे शायरी। बहरे गम में सफीने उतर जाएंगे, बहरे गम में सफीने उतर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे। मौत की आंधियां जब चलेंगी तो फिर, मौत की आंधियां जब चलेंगी तो फिर, मेरे पंछी उड़ानों से डर जाएंगे। किसको मालूम था हम शब ख्वाब में, किसको मालूम था हम शब ख्वाब में अपने ख्वाबों की सूरत बिखर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। तुमने जब भी मोहब्बत से देखा मुझे, तुमने जब भी मोहब्बत से देखा मुझे, मेरे गेसू हवा में बिखर जाएंगे। मेरे आंचल पे रंगे रफाकत के बाद, मेरे आंचल पे रंगे रफाकत के बाद, रंग जितने हैं कच्चे उतर जाएंगे, रंग जितने हैं कच्चे उतर जाएंगे। आज वीरा है दिल का चमन इसलिए, आज वीरा है दिल का चमन इसलिए, आज हम भी सरे शाम घर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मकतर्ज है। दारे फानी में हम भी फलक से उरूज, दारे फानी में हम भी फलक से उरूज, चश्मे नम आए थे चश्मे तर जाएंगे। बहरे हम में सफीने उतर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे। तो आपके बच्चों में भी शौक है किसी को? मेरा बेटा है, उसके अंदर है। अच्छा। जब कभी भी किसी भी मामले में अगर वो उदास होता है तो वो रजने मतलब कहता है। अच्छा। उसको आमद होती है। अच्छा। वो मतलब तो देखती हैं आप उसकी जो वो बहुत अच्छा पक्का शायर है, वो महफूज शायर है वो, उसके अंदर अल्लाह ताला ने मतलब एक कुदरती तौर पर पंद्रह शायर है वो। हाँ, वो अंदर से हाँ जी होता है, उन्हें नहीं इतनी जरूरत जी। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाई थी तो उसकी गज़लें, मैंने साहब ये देखिए आप तो उस्ताद मोहतरम ही नाम है उनका, ये नाम है नहीं वो मरहूम एहसान करीम साहब उनका नाम है जी। तो वो कहने लगा अरे भाई नाम लेने चाहिए जो आपने कहीं गाइड नहीं मैं तो किसने कहती हूँ गाइड जी बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ। अच्छा। मैं तो कहती हूँ, मैं बहुत फख्र से नाम लेती हूँ। तो अच्छा, एक बेटे को बेटी को नहीं है? बड़ी वाली बेटी की बहुत जल्दी शादी हो गई थी। अच्छा। 19 ईयर्स की थी वो तो शादी कर दी थी मैंने। अच्छा। तो वो फिर कनाडा चली गई, तो उसकी अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा वो मतलब यहाँ हुई भी नहीं थी। वो शादी जो मतलब स्टूडेंट लाइफ में शादी हो गई थी उसकी। अच्छा। फिर बेटे को अंदर ये है अभी, जैसे मैंने आपको जिक्र किया। अब छोटी बेटी जो है मेरी आमना, तो वो अभी इंटर में है, वो अंग्रेजी में कहती है। अच्छा जी ठीक है। वो तो जो ज्यादा जो जबान पढ़ेंगे वही फिर उसी में कहेंगे ना। वो बेटा जो उर्दू नहीं कहता है। अच्छा। उर्दू तो असल में सीखना नहीं पड़ता ना, क्योंकि जबान है, तो घर की जो जबान है ना, तो वो फायदा हो जाता है बच्चों को। ये तो बाहर मसला होता है कि जब वो अंग्रेजी बोलते हैं तो फिर उर्दू में लिखना मुश्किल होता है। तो अब ये आप जल्दी जल्दी मुझे सुनाए 2-3 गज़लें या नज़्में अगर है। नहीं, इसी में से आप पहले ये गज़लें सुना दे, बाद में वो सुना दीजिएगा। तेरे गम का दिया देखते देखते,
میرے دل میں جلا دیکھتے دیکھتے، رات گم ہو گئی پربتوں سے ادھر، رات گم ہو گئی پربتوں سے ادھر، چاند سورج بنا دیکھتے دیکھتے، چاند سورج بنا دیکھتے دیکھتے، ایک پتا گرا شاخ سے ٹوٹ کر، ایک پتا گرا شاخ سے ٹوٹ کر، ایک گنچا کھلا دیکھتے دیکھتے، ایک گنچا کھلا دیکھتے دیکھتے، چشمے بے نور میں شمع جل اٹھی، چشمے بے نور میں شمع جل اٹھی، شمع جل اٹھی، شمع نور خدا دیکھتے دیکھتے، جتنے غنچے تھے وہ پھول بنتے رہے، جتنے غنچے تھے وہ پھول بنتے رہے، رات شبنم ہوا دیکھتے دیکھتے، رات شبنم ہوا دیکھتے دیکھتے، اس کے قدموں کی آہٹ سے میں جی اٹھی، اس کے قدموں کی آہٹ سے میں جی اٹھی، اس کے قدموں کی آہٹ سے میں جی اٹھی، راہ دست فنا دیکھتے دیکھتے، دست فنا دیکھتے دیکھتے، بہت شکریہ۔ اپنے ہی آپ پر ہم فدا ہو گئے، اپنے ہی آپ پر ہم فدا ہو گئے، اے عروج آئینہ دیکھتے دیکھتے، واہ 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 واہ، پھر سنائیے۔ بہت شکریہ۔ اپنے ہی آپ پر ہم فدا ہو گئے، اپنے ہی آپ پہ، اپنے ہی آپ پہ ہم فدا ہو گئے، اے عروج آئینہ دیکھتے دیکھتے، تم بھی کچھ ہو نہیں، اپنے فدا ہونے پہ بہت خوش ہے۔ دراصل اس طرح کی کیفیات کبھی کبھی آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا نا لکھ لی آپ نے کیفیت، جسے آپ خود پڑھیں، خود خوش ہوں کہ بھائی دیکھو جی کیا میں نے مزے کی بات لکھ دی۔ لیکن جب تک انسان خود کہتے ہیں نا، جو چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ باہر بھی آتی ہیں، جی بالکل آتی ہیں، اور انسان کا جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر دے رہا ہوتا ہے۔ جی شاید اب آپ کیا سنا رہی ہیں؟ کیا میں اپنی کتاب میں سے کچھ ضرور کتاب کی بھی تو سنانی چاہیے۔ جی بالکل، کتاب ہی ابھی تازہ ہی ہے، ابھی سال بھی نہیں ہوا ہے۔ ہاں معلوم۔ عمر بھر ایک ہی سفر میں رہے، عمر بھر ایک ہی سفر میں، ایک ملاقات کے اثر میں رہے، بھیڑ یوں بھی ہمیں پسند نہ تھی، بھیڑ یوں بھی ہمیں پسند نہ تھی، کم نہیں ہے کہ ایک نظر میں رہے، لوگ اوروں کے بل پہ اڑتے تھے، لوگ اوروں کے بل پہ اڑتے تھے، اڑتے تھے، لوگ اوروں کے بل پہ اڑتے تھے، ہم مگر اپنے بالوں پر میں رہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا۔ وہ بھی تو انتخاب خاص ہی ہے، وہ بھی تو انتخاب خاص ہی ہے، ہم بھی فہرست مختصر میں رہے، ہم بھی فہرست مختصر میں رہے، فہرست مختصر میں رہے، کتنے جذبوں کو مل سکی نہ زبان، کتنے جذبوں کو مل سکی نہ زبان، کتنے جذبوں کو مل سکی نہ زبان، بنت حوا تھے اپنے ڈر میں رہے۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ بنت حوا تھے اپنے ڈر میں رہے، کتنے جذبوں کو مل سکی نہ زبان، بہت اچھے، بنت حوا تھے اپنے ڈر میں رہے، اپنے ڈر میں رہے، لوگ دنیا کی سمت جاتے تھے، لوگ دنیا کی سمت جاتے تھے، ہم محبت کی راہ گزر میں رہے، لوگ دنیا کی سمت جاتے تھے، ہم محبت کی راہ گزر میں رہے، بے تقدس نہیں کیا آنچل، بے تقدس نہیں کیا آنچل، گھر سے باہر بھی جیسے گھر میں رہے، گھر سے باہر بھی جیسے گھر میں رہے۔ بہت اچھے، وہ پھر سنائیں، ڈر میں رہے، کتنے جذبوں کو مل سکی نہ زبان، کتنے جذبوں کو مل سکی نہ زبان، کتنے جذبوں کو مل سکی نہ زبان، بنت حوا تھے اپنے ڈر میں رہے، بنت حوا تھے اپنے ڈر میں رہے۔ بہت اچھا، بہت شکریہ۔ شہزاد کے اور مشاغل کیا ہیں؟ گھر کو سب سے پہلے میں ترجیح دی ہے، اور گھر کی ذمہ داریاں، اور پھر انسانیت کی کچھ خلق خدا بھی کچھ نہ کچھ میں کرتی رہتی ہوں، اور وہ یہ بھی کام میرا بچپن سے ہی ہے۔ اچھا اچھا، ادب اور انسانیت کی خدمت، اچھا، جی اپنے طور پہ میں یہ پھر بھائی کام کرتی جی ہاں میں کرتی ہوں،
मगर मैं किसी को कर्ज से अया नहीं करती हूँ। अच्छी बात है। तो अपने हिस्से का मैं काम करती हूँ। अया करना भी अच्छा है, ना करना भी अच्छा है, दोनों तरह से है कि आप बता भी सकते हैं कि दूसरों को दूसरों तरजीह हो, को जी, और अगर नहीं बताना तब भी कभी खामोशी से भी। आज यहाँ जिक्र कर दिया इसीलिए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये तो करने चाहिए काम, जी। सफाई का। आप दूसरों का भी हक है हमें, हम पे अगर बिल्कुल बिल्कुल हमारी जात पे बहुत से लोगों का हक होता है, हमारे हमसायों का भी हक है हम पर। खानदान वालों के साथ साथ, घर वालों के साथ साथ हमसायों का भी हक है, दोस्त अहबाब का हक भी है हमारा। जी तो बात सही है। तो आप सुनाइए। किसी रंगीन ख्याल की सूरत, किसी रंगीन ख्याल की सूरत, लम्हा पुरजमाल की सूरत मेरे होठों पे आ ही जाता है, मेरे होठों पे आ ही जाता है। अब वो अक्सर सवाल की सूरत, अब अक्सर सवाल की सूरत। तुम नहीं हो तो मुझको लगता है, तुम नहीं हो हो तो मुझको लगता है। एक लम्हा भी साल की सूरत, एक लम्हा भी साल की सूरत। मेरी बेटी की जब शादी हुई थी ना, तो जब ये सब लग थी, तुम नहीं हो तो मुझको लगता है, एक लम्हा भी साल की सूरत। आज उससे जुदा हुए हैं हम, आज उससे जुदा हुए हैं हम, और वो भी विसाल की सूरत, और वो भी विसाल की सूरत। याद बनकर वो आज आ निकला, याद बनकर वो आज आ निकला, याद बनकर वो आज आ निकला। दश्ते दिल में गजाल की सूरत, दश्ते दिल में गजाल की सूरत। कितने दिन बाद अब मिला है उरूज, कितने दिन बाद अब मिला है उरूज, और वो भी जवाल की सूरत। कितने दिन बाद अब मिला है उरूज, और वो भी जवाल की सूरत। एक गजल जो बहुत मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को भी ये पसंद है गजल। बच्चों के नाम एक गजल, अम्मा की एक गजल बच्चों के नाम। आओ ख्वाबों से दोस्ती कर लें, आओ ख्वाबों से दोस्ती कर लें, चांद रातों से दोस्ती कर लें। उसकी यादें बहुत सताती हैं, उसकी यादें बहुत सताती हैं, उसकी यादों से दोस्ती कर लें, उसकी यादों से दोस्ती कर लें। खूब धोखे दिए हैं इंसान ने, खूब धोखे दिए हैं इंसान ने, अब फरिश्तों से दोस्ती कर लें। दोस्ती है दरअसल दोस्ती का पैगाम ये मेरे वालिदैन ने मुझे दिया है। मेरा पैगाम मोहब्बत है। हाँ जी, दोस्ती का। वो कहते हैं ना कि दोस्ती ऐसा नाता जो हर चीज से महंगा है, सोने से भी महंगा है। मगर मैं कहती हूँ हर चीज से महंगा है, सोना चांदी जेवरात सबसे महंगा है दोस्ती का रिश्ता। और दोस्ती का रिश्ता ही बहुत अजीम होता है। तो बात सही है। खूब धोखे दिए हैं इंसान ने, अब फरिश्तों से दोस्ती कर लें। दोस्ती है गर खुदा से मकसूद, दोस्ती है गर खुदा, दोस्ती है खुदा से गर मकसूद, इसके बंदों से दोस्ती कर लें। देखिए शेर कितना अच्छा है। क्या बात है, ये आपने कह दिया तो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया था। दोस्ती है खुदा से गर मकसूद, इसके बंदों से दोस्ती कर लें। पास अपनों को जब नहीं तो फिर, पास अपनों को जब नहीं तो फिर क्यों ना गैरों से दोस्ती कर लें। बहुत शुक्रिया। ये भी एक अपना दर्द रखते हैं, ये भी एक अपना दर्द रखते हैं, दिल के मारों से दोस्ती कर लें। ये भी एक अपना दर्द रखते हैं, दिल के मारों से दोस्ती कर लें। कैसे मुमकिन है वो ना हो तो रूज। बहुत शुक्रिया अदा। कैसे मुमकिन है वो ना हो तो उरूज, हम हजारों से दोस्ती कर लें और ख्वाबों से दोस्ती कर लें, चांद रातों से दोस्ती कर लें। एक गजल हो, एक गजल अब सुना दे, फिर हम इजाजत लेंगे अपने दिन से। एक या दो सुना दें। अच्छा,
अब सोच में पड़ गई। हाँ हाँ। तो कोई सुनाए जो आपकी बहुत मशहूर और लोगों को पसंद आती है। आपके मियाँ भी सुनते हैं शौक से? वो जी सुनते हैं वो। पसंद आती है उनको आपकी शायद? जी हाँ पसंद आती है। अच्छा। और खतर दिल रखने के लिए कह देती हूँ। ये भी बड़ी बात है कि दिल रखने के लिए कहते हैं। दिल तो रखते हैं। दिल रखते हैं तो हाँ, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं। हाँ। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मेरी बहनों को बहुत पसंद है। हाँ, मेरा फैमिली में तो होता है ना। हाँ, पापा को बहुत पसंद है। सबको सुना देती हैं जब बैठे हैं तो सुना। हाँ जब वो फैमिली गैदरिंग होती है ना, गेट टुगेदर होती है ना, तो मैं कुछ ना कुछ सुनाती हूँ सबको। हाँ, जाने नहीं तो नहीं मुझे अपने घर वालों को सुनाकर ज्यादा खुशी होती है। जहाँ अपनाइयत जी। महसूस होती है ना, वहाँ ये इंसान खुल के सुनाता है। और महफिलों में तो कैसा लगता है, ये माहौल कैसा लगता है आपको, अदबी महफिलें और ये वो जो है शहर का, या अच्छा है सब। ये तकरीबन सभी अच्छा है। और देखिए 100% तो हर कहीं भी कुछ भी नहीं होता है ना, मगर ये कि ज्यादातर अच्छा ही है माहौल, मैंने तो अच्छा ही देखा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जाती हैं आप, शिरकत करती हैं? जी अब जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए ना, तो जैसे मैं निकलना मैंने शुरू किया है। तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल से आप जा रही हैं? 10 साल से। अच्छा, तो वो मतलब अपनी जिम्मेदारी पहले पूरी की? पहले जिम्मेदारियां पूरी की, फिर मेरी जो छोटी जो बेटी है तो उससे कहा मामा अब मेरी फिक्र, वो सबसे छोटी है, वो उसी ने मुझे घर पे निकलने के लिए जो ना वो कहा कि मामा अब निकले हम। तो यानी जो आपकी आप लिखती हैं, अपनी पहचान बनाई इस शायरी को। हाँ उसको, मेरी बेटी को शौक है मामा पढ़ा करें, जाए करें, प्रोग्राम में अटेंड किया करें शायरी में, अदबी माहौल। जी तो घर का भी अदबी ही माहौल है माशाल्लाह से। मेरे हस्बैंड हाँ, जब मियाँ सुन लेते हैं आपकी शायरी तो और क्या चाहिए, अदबी हो गया ना। हाँ मगर वो साइंस के आदमी है, उनका साइंस लेकिन उनका फिर भी दिल सब्जेक्ट रखते हैं है। आपका ना। हाँ दिल रखते हैं, उनको भाई शौक भी है। हाँ, किताबें पढ़ने का शौक उनको के शौक है। बगैर तो नहीं कुछ होता। किताबें हमारे यहाँ किताबें पढ़ी जाती हैं। अच्छा। मेरे अपने मम्मी पापा के घर में भी हमारे यहाँ तो जैसे वो कहते हैं राशन के साथ किताबें आती थी, राशन भी आता था साथ में हमारी किताबें आती थी। और सबकी अपनी अपनी पसंद, पापा की अपनी पसंद की किताबें होती थी, हमारी अपनी होती थी, बच्चों की होती थी। अदब अर्ज भी होता था मम्मी के लिए, और टोट बटोट और बच्चों की कहानियाँ, ये सब अखबार जहाँ। अखबार खवातीन पहले, अखबार खवातीन पहले बहुत मशहूर। हाँ जी जी वो भी था, मगर मैं वो सब बहुत छोटी थी, स्कूल में थी मैं। अच्छा जी जब वो आता था, फिर अखबार जहाँ से ही मैंने तो स्टार्ट शुरू से किया। चल रहा है। अखबार जहाँ से तो हमारे यहाँ बहुत सारे रिवाज है सबका, अदब से लगाव भी सबका है। सबका तो बहनों का आप भी। शायरी भी कभी अपने घर में करवाएं? मैं तो तकरीबन 5-6 साल से मुस्तकिल करवा रही थी, करवाती हूँ। मेरे घर का, मैंने अपने घर का नाम ही ऐवान अदब रखा है। चलें, बहुत अच्छा, ये तो अच्छा किया जी, ऐवान अदब। जी बाकायदा तकरीबात रखती थी मैं अपने घर में। अच्छा। अभी कुछ अरसे से जरा मेरी तबीयत जरा थोड़ा सा बीपी का लो की शिकायत हो रही थी, तो फिर वो मैंने जरा लोग भी जी लोग भी चलें, बीपी आपका सही रहे तो चलें, हाँ महफिलें भी जारी रहेंगी। सेहत का ख्याल रखा करें अपना। खवातीन कहाँ रखती हैं खैर, रखना रखना तो चाहिए, हम लोग सबका करते हैं घर में, घर वालों का, हर चीज का। मेरी तो अपनी आदत है, अपनी जाती तौर पे आमतौर पे सभी करते हैं। खवातीन अपने घरों का नहीं ख्याल रखेंगी तो कौन रखेगा भाई। हाँ तो उसी से घर चलते हैं। अब घर का हर फैमिली मेंबर ही इम्पोर्टेंट होता है। कभी लोग हाँ कहीं मैंने सुना है लोग कहते हैं कि मर्द होता है, मैं कहती हूँ मर्द भी जितना ही अहम है उतनी ही औरत है, जितना हस्बैंड है उतने ही। अच्छा, मैं बताऊँ, वो अच्छे घर रहते हैं जो औरतों की, बच्चों की, लड़कियों की इज्जत ज्यादा करते हैं ना जिन घरानों में। और होती थी पहले तो कहते थे कि लड़कों को बाद में डांट पड़ती है बाद जगहों पे, और बच्चियों को नहीं कुछ कहते। हमारी फैमिली में इस तरह भाई बहनों को कुछ नहीं कहना, छोटे से बच्चे के जहन में डाला जाता है। तो अच्छी बात है। मेरे पापा तो इतना एहतराम करते हैं, करते थे बचपन से, और अब भी इतने ज्यादा। ये आम बात थी, ये कोई नई नहीं है। पापा ने बिल्कुल एक बैलेंस रखा है बेटियों में और बेटों में, और यही मैंने अपने घर में रखा। हाँ बहुत अच्छा। चले अब आप सुना दें जल्दी से। अगर कौन समझेगा जिंदगी मेरी, कौन समझेगा जिंदगी मेरी,
मेरी दुश्मन है आगही मेरी। वाह भाई वाह, वाह शुक्रिया। कौन समझेगा जिंदगी मेरी, मेरी दुश्मन है आगही मेरी। मेरी दुश्मन है आगही मेरी। मैं हकीकत शनास यूं भी हूँ, मैं हकीकत शनास यूं भी हूँ, आईने से है दोस्ती मेरी। आईने से है दोस्ती मेरी। इसलिए शोर मैं नहीं करती, इसलिए शोर मैं नहीं करती। सब पे भारी है खामोशी मेरी। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। इसलिए शोर मैं नहीं करती, इसलिए शोर मैं सब पे भारी है खामोशी मेरी। वाह वाह, जिंदगी भर के इस सफर में कहीं, जिंदगी भर के इस सफर में कहीं तुमने महसूस की कमी मेरी। वाह, तेरे गी से मैं यूं नहीं डरती, तेरे गी से मैं यूं नहीं डरती, मेरे अंदर है रोशनी मेरी। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तीरगी से मैं यूं नहीं डरती, मेरे अंदर है रोशनी मेरी। वाह वाह, मेरे अंदर है रोशनी मेरी। मेरी पहली दुआ भी तुम ही हो, वाह वाह, मेरी पहली दुआ भी तुम ही हो, और तुम आखिरी खुशी मेरी। वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह, मियाँ को खुश करने के लिए। बोलते हो तो फिर नहीं रुकते, अच्छा ये भी है। बोलते हो तो फिर नहीं रुकते, हो तो फिर नहीं रुकते, बात सुनते नहीं कभी मेरी। अरे अरे, ये बुरी बात है। कौन समझेगा जिंदगी मेरी, मेरी दुश्मन है आगही मेरी। वाह वाह वाह, चलें एक तो और सुना दे, एक और सुना दे, तो फिर हम इजाजत लेंगे अपने देखने वालों से। एक गजल के चंद अशआर, तो इसके बाद फिर हम शोलों पे जिंदगी थी हमारी तमाम रात, शोलों पे जिंदगी थी हमारी तमाम रात, शमे वफा जला के गुजारी तमाम रात, परवाने आए आके गिरे और जल गए, रोती रही है शम्मा बेचारी तमाम रात, उम्र तवील शब के सफर में गुजर गई, उम्र तवील शब के सफर में गुजर गई, मंजिल थी जेरे गाम हमारी तमाम रात। शुक्रिया। आई जुनू बदोश सहर साथ हो लिए, एक आलमे फरार था तारी तमाम रात। बहुत अच्छे। फुर्सत किसे जो साथ तुम्हारा दे शाहिदा, फुर्सत किसे जो साथ तुम्हारा दे शाहिदा, करना है तुमको नजम शुमारी तमाम रात। एक नाम अपने शहर, प्यारे शहर कराची के लिए। इरशाद। कराची को किसकी नजर खा गई, कराची को किसकी नजर खा गई, अदावत के शोले भड़कने लगे, खुशी के लिए दिल तरसने लगे, किसी को किसी से नहीं वास्ता, किसी को किसी से नहीं वास्ता, है सबका सभी से जुदा रास्ता, है सबका सभी से जुदा रास्ता, घटा एक उदासी की है छा गई, घटा एक उदासी की है छा गई, कराची को किसकी नजर खा गई, कराची को किसकी नजर खा गई। मोहब्बत के खिलते यहाँ फूल थे, मोहब्बत के खिलते जहाँ फूल थे, मोहब्बत के खिलते यहाँ फूल थे, तराने मोहब्बत के मकबूल थे, कली पर भी होता था गुल का गुमान, कली पर भी होता था गुल का गुमान, वफाओं का रुकता ना था कारवां, पर अब इसकी रौनक ही गहना गई, पर अब इसकी रौनक ही गहना गई, कराची को किसकी नजर खा गई, कराची को किसकी नजर खा गई। खुदा से दुआ है कि फिर शाद हो, खुदा से दुआ है कि फिर शाद हो, मेरा शहर पहले सा आबाद हो। शुक्रिया। खुशी के यहाँ गीत गाएं सभी, हर एक आदमी गम से आजाद हो, यही बात तो दिल को तड़पा गई, यही बात तो दिल को तड़पा गई,
कराची को किसकी नजर खा गई। वाह बहुत अच्छे। तो शायद इस दफा तो हम आपसे इजाजत चाहेंगे अब, और आप कुछ सुनाना चाह रही हैं? बस एक खाई को उसके बाद जी क्योंकि ये किताब मेरी खाई को से लिया हुआ ये कम मैंने। अच्छा। पड़ गया हर कोई मांद, पड़ गया हर कोई मांद जब बाहों में लेकर मुझको, पड़ गया हर कोई मांद जब बाहों में लेकर मुझको, झील में उतरा चांद। वाह 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 वाह, ये यहाँ से किया जी किताब का सही, बहुत अच्छे। तो हमारा आज का प्रोग्राम, आइए अपनी शाहिदा ही नहीं बल्कि हैं शाहिदा साहिबा, और आइंदा हम किसी और शायरा को या शायर को बुलाएंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे, और हम अब इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज, नाज़रीन से भी और आपसे भी।